یا علی مدد اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. اب تیری محبت لاگی میرے صاحب، اب تیری محبت لاگی. یا مولا تیری محبت میرے دل میں، اب کا جو لفظ ہے نا، اب تیری محبت لاگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ظاہر ہو رہی ہے. اور یہ محبت جب ظاہر ہوتی ہے تو انسان کے ارد گرد سارے حالات بدل جاتے ہیں، خیال بدل جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی بدل جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، خیالات پاک ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. مذہب تو بڑی ہی پیاری چیز ہے، مذہب کو چکھ کے تو دیکھو، اور وہ بھی اسماعیلی مذہب کہ جو نبیوں کا طریقہ اور فرشتوں کا دین ہے، جس میں حاضر جومے کا دھنی بیٹھا ہوا ہے. ساری دنیا دیکھ لو، کہیں بھی ایسا امام، ایسا گرو، ایسا مرشد کدھر نہیں ہے، کہیں نہیں. دنیا میں کون ہے ایسا کہ جو ہمارے امام کی طرح اپنے مریدوں کو اتنا چاہتا ہوئے کہ وہ اپنی دنیاوی اولاد سے بھی زیادہ اپنے مریدوں کو پیار کرتا ہے. مولا ایک دفعہ فرماتے تھے کہ دنیا کے جتنے بھی ماں باپ ہیں ان سب کی محبت ان کی اولاد کے لیے جو ہے اس کو اکٹھا کرو تو بھی میں تم کو زیادہ پیار کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں میں جتنا پیار کرتا ہوں تم اتنا پیار مجھے نہیں کر سکتے. اتنا پیار ہوگا اس کو. حقیقت ہے کہ ہم لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں، ہمارے اندر حضرت امام ہے، ایک باپ اور ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمارا امام ہے. چار چار جگ ماہے فری فری جو. سید محمد شاہ جنہوں نے یہ گنان فرمایا، وہ خود بھی جماعت خانے میں آتے تھے تو جھومتے جھومتے یہ گنان بولا کرتے تھے. کتنا میٹھا گنان کتھا ہے انہوں نے. ایک تو اس گنان کے الفاظ بہت اچھے ہیں، دل میں اتر جاویں. دوسرا اس کا راگ بھی بہت اچھا ہے. چارے چارے جگا ماہے فری فری جو تیرے تولے کوئی نہ آوے صاحب جی تم اور من بھاوے. سید محمد شاہ جنہوں نے یہ گنان فرمایا، وہ خود بھی جماعت خانے میں آتے تھے تو جھومتے جھومتے یہ گنان بولا کرتے تھے. یہ گنان بہت پرانا نہیں ہے. مولانا شاہ حسن علی ماں باپ کے زمانے کے اندر یہ سید محمد شاہ تھے. ان کو محمد دولہ بھی کہتے ہیں. یہ جو محمد شاہ دولے تھے یہ 18-19 برس کی عمر میں بمبئی میں فوت ہوئے، اور جہاں بمبئی کے اندر درگاہ محلہ ہے، کانڈی محلے سے یعنی کریم آباد سے آپ جب بڑے جماعت خانے جاؤ تو رستے کے اندر اپنا جو قبرستان ہے اس کو درگاہ محلہ کہتے ہیں، وہاں یہ دفن ہیں. انہوں نے بہت تھوڑے گنان رچے. میں نے عرض کی کہ 18-19 سال کی عمر میں گزر گئے، مگر بڑے عابد تھے، بڑے طاقت والے تھے. بدن کی طاقت تو نہیں تھی کیونکہ بہت دبلے پتلے تھے، اور قد بھی بہت لمبا نہیں تھا،
मीडियम से थोड़ा छोटे कद के थे, मगर हमा वक्त इबादत में रहने की वजह से इनका जो जलाल और रौब था वो बहुत था। इस्माइली दाई थे, मगर मेमन लोग इनको बहुत मानते थे, पारसी भी मानते थे, दूसरी कौम के लोग भी आया करते थे, मराठे भी इनके मुरीदों में से थे। लेकिन जो मेमन कौम थी वो इनको बहुत चाहती थी और मेमन बहुत ज्यादा तादाद में इनको मानते थे। गुजर गए। इस्माइली तो उनके पास जाते नहीं थे, क्योंकि इस्माइलियों का तो शाह पीर हसन अली शाह और पीर अली शाह मौजूद थे, मगर ये जमात खाने आते थे, गिनान बोलते थे और इमाम के हुक्म से इनके गिनान भी जमात खानों में बोले जाते थे, वाज भी करते थे। मगर मेमनों ने जब ये सुना कि ये गुजर गए तो नॉर्मली चूंकि वो हमारे पीर की औलाद में से थे, इसलिए जमात ने उनके गुस्ल और दफन का इंतजाम किया। गुस्ल करके दे के जब जनाजा तैयार हुआ और जनाजा उठाने की बात आई तो मेमन लोग पहुंच गए कि ये हमारे पीर हैं। अरे तुम्हारे पीर कहां से हुए? पीर हसन कबीर दिन की औलाद में से इस्माइली हैं। नहीं, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो मुखी भागे वाड़ी में। उस वक्त इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के दादा श्री हसन अली शाह इमाम रहते थे। मौला के हुजूर में गए, अर्ज की कि खुदावंद ये झगड़े की बात आ गई, हमको मेमन लोग जनाजा नहीं उठाने देते सैयद मोहम्मद शाह का। मौला हंसे, मुखी छोड़ दो, तुम उनको जनाजा उठाने दो। खुदावंद देखो मुखी, वो ये कहना चाहते थे कि हमारे इस्माइली पीर हैं, मगर मौला ने बोलने नहीं दिया। देखो मुखी, वो जनाजा नहीं उठा सकेंगे, तुम छोड़ दो, हट जाओ। मुखी साहब आए, अपने जवानों को कहा, ए खिसी भी ना। अपने जवान हट गए। चार बड़े बड़े पहलवान जैसे मेमन भाई आए। अभी वो हल्के फुल्के थे, मैं नहीं समझता, मैंने उनको देखा नहीं है, मगर उनकी जो तस्वीर देखी है मैं नहीं समझता कि वो 100 रत्तल के भी होंगे। दुबले पतले थे, छोटा कद था, 18-19 वर्ष की उम्र थी। अब ये जो चार जवान आए मेमन भाइयों के, तो जनाजा उठा न सके। चार और आ गए, जनाजा उठा न सके। चार और आ गए, 25-30 आदमी एक जनाजा न उठा सके, और वो भी एक दुबले पतले आदमी का। मुंह लाल हो गए, जमीन के साथ जैसे वेल्डिंग कर दी हो, इस तरह हो गया। जब 25-30 आदमी इनके जवान भी इतनी देर लगाई, कोशिशें की, मुंह लाल हो गए जोर लगा के, जब ना उठा सके तो मेमनों के जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपने जवानों को बुला लिया, पांचों कम न आने, हट जाओ। अपने मुखी ने चार छोकरों को कहा उठाओ, तो उठा दिया, पीछे हट गए। हमने उनको दफन किया क्योंकि वो हमारे थे। कितना मीठा गिनान कथा है उन्होंने। साहिब जी तू मोरे मन। एक दफा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कराची आए और उनके हुजूर में ये गिनान पढ़ा गया। 2-3 पाठ पढ़े गए, उसमें तो एक ये पाठ था, जे जे मांगू ते तुही दे, एवा वाला दल जावे साहिब जी तू मोरे मन।
इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लकड़ी के ऊपर ऐसा 2 हाथ की उंगलियां मिला के ऐसा बैठे हुए थे, और जब ये पाठ उस लड़की ने बोला तो लकड़ी को ऊंचा नीचा करके कहते थे, अलबत्ता जो मांगोगे हम देंगे। ये इमाम की शान है। मैं अभी अभी आपके यहाँ के दूसरे बड़े जमात खाने के अंदर वाज करके आया कि हम लोग निहायत ही खुश नसीब हैं, हमारे अंदर हज़रत इमाम है, एक बाप और माँ से ज्यादा प्यार करने वाला हमारा इमाम है। हकीकत में चूंकि वो इस दुनिया का इंसान जैसा नहीं, वो आले रसूल है, अल्लाह का खलीफा है, उसमें इमामत का नूर है, इसलिए उससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। एक दफा मौला के प्यार की बात करूं, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कपूरथला गए। यह बात डायमंड जुबली से पहले की है। कपूरथला में पंजाब की जमात इकट्ठी हुई। कपूरथला का जो महाराजा था उसने सारे शहर में मुनादी कराई कि जो इस्माइली आए हैं वो मेरे मेहमान के मुरीद हैं, आगा खान साहब मेरे मेहमान हैं, इसलिए उनके जो मुरीद हैं वो भी मेरे मेहमान हैं। तो इस बात की मुनादी की जाती है सारे शहर में कि इस्माइली कुछ भी खाएं, पैसे मत लो, उसको लिख लो और मेरे खजाने से तुमको उसे पैसे मिल जाएंगे। टांगे वालों को और टैक्सी वालों को हुक्म किया गया कि इस्माइली जहां भी जाएं उनको ले जाओ, उनसे पैसे नहीं लेना। 4000 से ज्यादा इस्माइली गए उधर और सारे शहर ने उनकी मेहमान नवाजी की। जब मौला पंडाल में आए तो ऐसा मौला एक एक को देखते रहे, एक एक को, औरतों में भी मर्दों में भी। माता सलामत साथ थे उस वक्त, बेगम उम्मे हबीबा उनके साथ थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ऐसा फिर के एक एक को देखते रहे, फिर वापस इस तरह से एक एक को देखते रहे। फरमाते हैं मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा दिल चाहता है कि तुम एक एक को, मेरे रूहानी बच्चे को मैं बुलाऊं और मैं अपनी गोद में बिठा के प्यार करूं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। कितनी प्यार जैसी चीज इसमें है। इमाम की मोहब्बत का ख्याल करो कि वो अपनी मजबूरी जाहिर करता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मैं ये नहीं कर सकता कि तुम बहुत हो, मैं तुम्हें एक एक को अपनी गोद में बिठा के तुम्हें प्यार करूं। ना प्यार होगा उसको। दुनिया में कौन है ऐसा कि जो हमारे इमाम की तरह अपने मुरीदों को इतना चाहता होवे कि वो अपनी दुनियावी औलाद से भी ज्यादा अपने मुरीदों को प्यार करता है। मौला एक दफा फरमाते थे कि दुनिया के जितने भी माँ बाप हैं उन सब की मोहब्बत उनकी औलाद के लिए जो है उसको इकट्ठा करो तो भी मैं तुमको ज्यादा प्यार करता हूं। मौला फरमाते हैं मैं जितना प्यार करता हूं तुम इतना प्यार मुझे नहीं कर सकते। हकीकत है। अब जो हमारे नबी या हमारे इमाम हैं वो खुदा ही की तरफ से हमारे पास आए हुए हैं, बल्कि वो खुदा का नूर हैं। इसलिए जितने खुदा की नूर में कुव्वतें और ताकतें हैं वो तमाम असरात हमारे नबियों और हमारे इमामों में रहे। कोई भी नबी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होवे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होवे, हर नबी 1,24,000 जो नबी थे वो सब के सब मोहम्मद ही का नूर थे। इसलिए वो हमें बहुत चाहते हैं। बात ऐसी बातें होती हैं कि बार बार रिपीट करने को दिल चाहता है,
اس لیے کہ اس میں مولا کا پیار ہوتا ہے. سلطان محمد شاہ نے جیسے کہا کہ دیکھتا رہا اور اس طرح دیکھتا رہا کہ جیسے کوئی مجبور آدمی ہوتا ہے. مولا کہتے ہیں میں کیا کروں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ تم اتنے بہت ہو کہ میں تم کو ایک ایک کو اپنی گود میں بٹھا کے پیار کروں. اس میں کتنا پیار نظر آتا ہے. ایک لڑائی ہوئی، نبی کے زمانے کی بات کرتا ہوں. رسول اکرم ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. مسلمان تو جیت گئے تھے اور وہ جو کافر تھے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. آپا دھاپی پڑ گئی، زخمیوں کو اٹھایا جاتا تھا، کئیوں کو قید بنایا گیا. اس میں ایک ماں کا چھوٹا بچہ گم ہو گیا. وہ ماں مسلمان نہیں تھی، ہارے ہوئے پارٹی کی ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا. 2-2.5 برس کا بچہ تھا، ماں کا کلیجے کا ٹکڑا ہے. وہ بے ہوشی کی حالت میں، یعنی یوں تو بھاگ رہی تھی، یہاں میرا مطلب بے ہوشی کے ارد گرد کی اس کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہوا. وہ اپنے بچے کے غم میں، اپنے بچے کے خیال میں بے تحاشا ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی. منہ پہ ہوائیاں چھوٹی ہوئی ہیں، اس کی وہ دوپٹہ اتر گیا ہے، حال بے حال ہو گیا. رسول پاک کے سامنے سے 2-3 دفعہ وہ عورت اس طرح نکلی. حضور نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، اس طرح دوڑ رہی ہے؟ عرض کی سرکار اس کا بچہ گم ہو گیا ہے. 2-3 آدمیوں کو فرمایا جاؤ اس کی مدد کرو. ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی، لیکن رحمت للعالمین، خدا کی رحمت جو ہے وہ کافر پہ بھی اترتی ہے، مومن پہ بھی اترتی ہے، لیکن چونکہ کافر کا جو دل ہے کفر سے بھرا ہوا ہے، اس لیے رحمت اثر نہیں کرتی. بارش تو سب جگہ گرتی ہے، باغیچے میں جب بارش گرتی ہے پھل پھول کھل اٹھتے ہیں. یہی بارش جب گندی جگہ کے اوپر گرتی ہے تو باس اور بھی نکل آتی ہے. لوگوں نے مدد کی، بچہ مل گیا. اب وہ عورت جانے لگی تو اس کو بولے نہیں نہیں، پہلے رسول اللہ کی خدمت میں چلو تاکہ ان کو پتہ لگے ہم نے مدد کر کے تمہارا بچہ ملا دیا. ڈرتی بھی تھی، خوش بھی ہوئی کہ میرا بچہ مل گیا. نبی کریم کے سامنے اس کو لے کے آئے، گھٹنوں پہ بیٹھ کے اس نے ادب کیا. نبی کہنے لگے یہ تیرا بچہ ہے؟ جگر سے لگا کے کہتی ہے ہاں. حضور کہتے ہیں اگر ہم اس بچے کو آگ میں ڈال دیں، اتنا سننا تھا تو وہ یوں محسوس کرنے لگی کہ جس میں آگ میں جل رہی ہوں، کیونکہ لڑائی کا وقت تھا. نبی اس وقت فاتح کی حیثیت سے سپہ سالار بن کے بیٹھے تھے. اس کے منہ سے نکل جائے کہ اس کو آگ میں ڈال دو تو کون بچانے والا ہے؟ یوں سننا کہ نبی فرماتے ہیں اگر ہم اس کو آگ میں ڈال دیں تو عورت کی تو جان نکل گئی. زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کیا، اتنا ولاپ کیا، روئی. کہتی ہے اس کو نہیں، مجھے آگ میں ڈال دو. اس کی ممتا دیکھ کے، ماں کی جو محبت ہے وہ خدا کے پیار کا ایک سیمپل ہے. اسی لیے رسول پاک فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ڈھونڈو. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں جیسا پیار اس دنیا میں انسان نہیں کر سکتا. نبی کریم نے اس کی حالت دیکھ کے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اس کو فرمایا جاؤ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا.
असहाबों को फरमाया, तुमने देखा एक माँ का प्यार, कि वो किसी भी कीमत पे अपने बच्चे को आग में डालने के लिए तैयार नहीं, बल्कि खुद जल जाने के लिए तैयार है। तुमने देखा माँ का प्यार? नबी रो पड़े, रोते रोते फरमाते हैं, तुमको खुदा की कसम खा के कहता हूं कि जिसके कब्जे के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जान है, खुदा अपने बंदों को इतना प्यार करता है कि वो किसी भी हालत में अपने बंदों को दोज़ख में गिरने नहीं देगा। ये अल-वदूद, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत पैदा करने वाला, ये खुदा की मोहब्बत है। उसने अपने बंदों को मोहब्बत से बनाया है। खुदा दुख नहीं देता, हम खुद ही भूल करके गुनाह करके दुखों में पड़ते हैं। याद रखो, खुदा कभी किसी को दुख नहीं देता। ऐ मोमिनो, आपकी इस कराची की 1.25 लाख की जमात के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो ये कह देते हैं, कभी कोई दुख आता है तो या तो वो खुदा को ब्लेम करते हैं, इल्जाम रखते हैं, और या ये कहते हैं किसी ने जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, उसने कुछ कर दिया। अरे नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, तुम ही ने कुछ किया है। तुम्हारे आमाल ऐसे हैं, इस वजह से दुख में गिरते हो। अरे खुदा की मौजूदगी में, खुदा है ना हर जगह, खुदा की मौजूदगी में कोई इंसान किसी को दुख दे सकता है? नहीं दे सकता। कभी किसी के ऊपर मत करो कि उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरे ऊपर जादू किया, या उसने कुछ नजर फेंकी। नहीं दीनदारों, हम इस्माइली तो बिल्कुल नहीं मानते इन चीजों को। इन ये चीजें अपने मन में से निकाल डालो कि आपको किसी ने नजर लगाई है या का जादू किया है। अगर आपके ऊपर किसी ने मान लो कि जादू किया भी है, अगर आपका ईमान, आपकी इबादत, आपकी नेकियां मजबूत है, तो आपको सारी दुनिया के जादूगर मिलके भी आपका बाल टेढ़ा नहीं करेंगे। खुदा हमें प्यार करता है, और खास तौर पे इस दुनिया के अंदर, इस सरजमीन के ऊपर वो पाक कदमों वाला इमाम जो इलाही नूर है, वो हमारे ऊपर इस तरह से साया हुआ है कि जिस तरह कभी कभी एक मुर्गी अपने छोटे चूजों को परों के नीचे समेट लेती है। कभी भी कोई चील या कौवा ऊपर से निकलता है तो वो ऐसी आवाज लगाती है कि सब भाग के अपनी मां के परों के नीचे छुप जाते हैं। मौला ऐसा है, वो बड़ा प्यार करता है, इसलिए आप भी उसको बहुत प्यार करो ताकि उसकी शुक्रगुजारी होए। वो प्यार करता है, ठीक है, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी में हम जब उसको चाहते हैं ना तो वो बहुत खुश होता है। अब तेरी मोहब्बत लागी मेरे साहिब, अब तेरी मोहब्बत लागी। या मौला, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में, अब का जो लफ्ज है ना, अब तेरी मोहब्बत लागी, इसका मतलब ये है कि मोहब्बत जाहिर हो रही है। और ये मोहब्बत जब जाहिर होती है तो इंसान के इर्द गिर्द सारे हालात बदल जाते हैं, ख्याल बदल जाते हैं, आंखों की रोशनी बदल जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है, ख्यालात पाक हो जाते हैं, और फरिश्तों के साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है। मजहब तो बड़ी ही प्यारी चीज है, मजहब को चख के तो देखो, और वो भी इस्माइली मजहब कि जो नबियों का तरीका और फरिश्तों का दीन है, जिसमें हाजिर जोमे का धनी बैठा हुआ है। सारी दुनिया देख लो, कहीं भी ऐसा इमाम, ऐसा गुरु, ऐसा मुर्शिद किधर नहीं है, कहीं नहीं। 1964 में हजरत इमाम यहाँ कराची में थे, दिसंबर महीने में।
और उस वक्त केनिया में थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं एक दफा जिक्र कर चुका हूं इधर ही किसी जमात खाने में। केनिया में गड़बड़ हो गई, एशियन लोगों के दिल बहुत उठ गए। हालांकि उन्होंने वहां की गवर्नमेंट ने जो कहा तो वो एशियन के लिए कहा, हम भी एशियन में आ गए। अपनी जमात बहुत अपसेट हो गई। मौलाना हजर इमाम ने कराची का प्रोग्राम 2 दिन कमती कर दिया और ये 2 दिन साहब नैरोबी आए। नैरोबी साहब खड़े हैं, माइक को हाथ से पकड़ा है, गले में चेन डाला हुआ था, उस चेन से दूसरे हाथ से खेल रहे हैं। निहायत ही ऐसी इत्मीनान के साथ मौला खड़ा था कि महज उसका चेहरा देख के दुख भुलाए गए। मेरे रूहानी बच्चों, मेरे को पता लगा कि तुम लोग थोड़े अपसेट हो गए हो, बेचैन हो गए हो, इसलिए मैं पाकिस्तान का प्रोग्राम 2 दिन कम करके तुम्हारे पास आया हूं, ये कहने के लिए आया हूं कि तुम फिक्र मत करो, मैं बैठा हूं। मौला कहता तुम फिक्र मत करो, मैं बैठा हूं। फिर साहब कहते हैं आई विल वरी फॉर यू, तुम्हारी फिक्र मैं करूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। कितने इत्मीनान देने वाले, तसल्ली देने वाले अल्फाज हैं। हजरत इमाम जैसा मालिक वो हमारे लिए इस तरह से कहे, चूंकि वो नूर है, चूंकि वो इमाम है, चूंकि वो सच्चा है, चूंकि वो हक है, इसलिए वो कह रहा है और उसके कहने में सच्चाई है। ये हजरत इमाम, उसके पास बेहिसाब दौलत है, बहुत बड़ी इज्जत और आबरू है, बादशाहों का बादशाह है। दुनिया के अंदर उसकी कोई सल्तनत दुनियावी तौर पे नहीं, लेकिन जहां जाता है दुनिया के बादशाह और दुनिया के प्रेसिडेंट उसको इज्जत देते हैं। इसको क्या पड़ी है कि हमारे चंद लाख इस्माइलियों के लिए दुख उठाता फिरे, क्या पड़ी है? आराम से मौज न करे। लेकिन ऐसा मौला के बेहिसाब इज्जत वाला दुनियावी नजर से देखो, फिर भी इस्माइलियों के लिए कितने दुख उठाता है। आपको मालूम नहीं मोमिनो, 24 घंटे के अंदर हजरत इमाम 2 घंटे भी बदन का आराम नहीं लेते, 2 घंटे भी नहीं। वो जिधर भी जाता है हमारी भलाई के लिए, वो जो कुछ भी करता है हमारी भलाई के लिए। अगर उसने आगा खान फाउंडेशन बनाई है तो अपने लिए नहीं बनाई, हमारे लिए बनाई है। अगर उसने इधर यूनिवर्सिटी बनाई और आगा खान हॉस्पिटल बनाई और इतने करोड़ों डॉलर खर्च किए तो वो हमारे लिए, एक बाप और माँ से ज्यादा प्यार करने वाला हमारा इमाम है। स्वामी अलगा न थी तूने अलगा करी नवा जानू जी, स्वामी अलगा न थी तूने अलगा करी नव जानू जी, स्वामी मारा मोटा छो समर्थ दासी छू तेरी, तू तो मेरा सबसे बड़ा साथी है, मददगार है, बहुत बड़ा मददगार, और ऐसा मददगार के उससे ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं, और ऐसा मददगार के कभी दगा ना करे, ऐसा मददगार के कुछ मांगता नहीं, ऐसा मददगार के जो छोड़े ना तुमको कभी। इससे बड़ा मददगार कौन हो सकता है? मौला मैंने तेरे को कभी भी अपने से जुदा नहीं समझा, कभी नहीं समझा, तू तो जुदा है ही नहीं। अब फिर कहते हैं ये हजरत इमाम बेगम, ते दिन स्वामी, उस दिन, किस दिन? मौत के दिन, हिसाब किताब के दिन। ते दिन
स्वामी मुने पास रावजो जी, बेहिसाब लोग होंगे, मैं कहाँ होंगी मुझे क्या पता, तू मुझे ढूंढने आना। पकड़ी ले जो मारो हाथ, दासी छूं तेरी, मैं तेरी गुलाम हूँ। मौला आपके ऊपर राजी होवे, आपकी मुसीबतें मुश्किलें दूर करे, मौला आपको दसों सुख रीत में पूरा रखे, इबादत बंदगी का शौक देवे, जमात खाने आने की मोहब्बत देवे, नेक अमाल की तौफीक देवे, मौला आपकी नेक दुआएं कबूल करे, मौला ज़हर बातुल में नूर अता करे, मौला ज़हर बातुल दीदार नसीब करे है जिंदा।